Good morning, students. Today we are going to do the activity of chapter the Northern Plains. So in previous class we have finished the question answer and back exercise. Okay. So today we will do activity. So let's get started. Part first. On the map of India, locate the Ganga, the Yamuna and the Sundarbans. Okay. So here I will show you the map of India and I will show you where the Ganga river, the Yamuna river and the Sundarban delta is on the map. Okay, so let me show you. So this is the map of India. Okay, this is political map. So first what you have to do, you have to mention the direction north, south. Here you have to write south. I have written here. Then east, then west. So these are the direction that you have to mention. Now the Ganga river and the Yamuna river, I have shown this Ganga river. It is flowing from the Himalayan range. So this is the Himalayan range. Okay. So from there the Ganga river flow and it flow like this, and from Yamunotri glacier Yamuna river flows. Okay, and here they meet at Sangam, which is near Allahabad. Okay, so you have to show Ganga and Yamuna river like this. Sundarban delta, it is formed when Ganga river join with the Brahmaputra river. Okay, here I have written Sangpo because Sangpo is the name of Brahmaputra river, but you have to write Brahmaputra. Okay, so when Brahmaputra river, this is Brahmaputra river. Okay, when it joins with the Ganga and when it finally merge into the Bay of Bengal, then a delta is formed here in West Bengal, which we call Sundarban delta. Okay, so like this you have to show. तो आज जो है हम पहला जो है क्वेश्चन में लिखा है कि गंगा और यमुना नदी को शो करना है और सुंदरबन डेल्टा को शो करना है. ये शो करने से पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ आपका साउथ है, इस साइड आपका ईस्ट है और दूसरी तरफ आपका वेस्ट डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं. गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है जो कि हिमालयन रेंजेस में है. तो उत्तराखंड जो है वहाँ पे भी हिमालयन रेंजेस है. तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, यहाँ से यमुना नदी निकल रही है. जहाँ पे दोनों ज्वाइन होते हैं वो संगम कहलाता है. बट आपको क्योंकि गंगा और यमुना नदी के बारे में पूछा है इसलिए मैंने सिर्फ रिवर्स को शो किया है. ठीक है, और ये लास्ट में किस में मर्ज हो जाती है जाके, गंगा रिवर ये बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है. ठीक है, सैंगपो रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है सैंगपो. ठीक है, जो तिब्बत में लोग इन्हें बोलते हैं. तो ये जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश की साइड से एंट्री लेता है और जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से जो है मिलेगी उधर उसको क्या बोलेंगे, उधर एक डेल्टा बन जाएगा. डेल्टा एक ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म होता है. ठीक है, और इस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहेंगे जो बे ऑफ वो वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, ओके. सो लाइक दिस यू हैव टू शो. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी. फाइंड आउट द सिटीज लोकेटेड अलोंग द रिवर यमुना. So you have to locate the cities that is located along the river Yamuna. So this is again the political map of India. I have shown the direction north, south. Here I have written south, then east, and this is west direction. Okay, so this river is Yamuna river. You can write if you want to. Okay, so I have just shown the cities only. So first, second, third, fourth, fifth, like this you can point this out. First denotes Delhi, तो point first means Delhi.
second means Mathura, third one is Agra, fourth is Allahabad, and fifth is Varanasi. So here this point 1, this show Delhi, second one show Mathura, third one show Agra, fourth show Allahabad, and fifth show Varanasi. Okay, so like this you have to show. Okay, तो आज हम जो है सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है कि यमुना नदी के किनारे बसने वाली जो शहरों को पॉइंट आउट करना है मैप में. ठीक है, तो मैंने आपका फिर से पॉलिटिकल मैप लिया है. यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो डायरेक्शन शो किया है. ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट. फिर ये यमुना नदी को शो किया हुआ है, बट क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिटीज़ बोला है तो मैंने इसको पॉइंट से शो किया है. 1 2 3 4 5. और यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो दिल्ली का है, दूसरा आगरा का है, तीसरा मथुरा का है, चौथा वाराणसी का है, इलाहाबाद का है, और पांचवा वाराणसी का है. और आप यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आप ये पॉइंट्स को शो कर सकते हो. ये मैंने यहाँ पे इसलिए शो किया है ताकि वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड ना लगे. ठीक है, और अच्छा सा मैप आपका बन जाए. लाइक दिस यू हैव टू शो. थर्ड क्वेश्चन इज मार्क द मेजर सिटीज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, in this you have to mark the major cities of northern plain. So northern plain it extends from Punjab to Punjab to Assam. So I have shown the capitals of those cities. Okay, and I have shown the union territories, that is Chandigarh and Delhi, that fall in northern plains. So let's see the map. This is the map. I have shown first is Chandigarh, second is Delhi, third is Lucknow, which is the capital of Uttar Pradesh, fourth Patna, capital of Bihar, fifth Kolkata, capital of West Bengal, and sixth Dispur, okay, capital of Assam. So I have shown with points. So here is Chandigarh, Union Territory, Delhi, Union Territory, Lucknow, which is in UP, Patna, which is in Bihar, Kolkata, which is in West Bengal, and Dispur, which is the capital of Assam. Okay, so like this you can show, and you can write the names here, and you have to show the direction also, like north, south, east and west. तो आपको क्या बोला हुआ है? सी पार्ट में आपको बोला हुआ है कि नॉर्दर्न प्लेन में आने वाली मेजर सिटीज़ बतानी है. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन में आने वाली मेजर सिटीज़ मैंने, देखो नॉर्दर्न प्लेन पंजाब से लेकर असम तक एक्सटेंडेड है. तो मैंने आपके लिए जो उनकी कैपिटल्स है उनको मैंने मार्क किया मेजर सिटीज़ में. ठीक है, सिटीज़ तो बहुत सारी आती है पर मेजर मैंने कैपिटल्स को मार्क किया है, और जो यूनियन टेरिटरी है हमारी उनको मार्क किया है. तो जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है. फर्स्ट, दिल्ली नेशनल कैपिटल भी और यूनियन टेरिटरी भी है. लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है. पटना बिहार का कैपिटल है. कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है. और दिसपुर असम का कैपिटल है. ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप जो है मैप बनाओगे तो आप डायरेक्शंस भी शो करोगे. ऊपर नॉर्थ है, नीचे की तरफ आपका साउथ है, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट है. और ये आप पॉइंट्स देख सकते हो. ये फर्स्ट जो है वो चंडीगढ़ को शो कर रहा है जो कि हरियाणा और पंजाब का कैपिटल है. दिल्ली ये रहा. उसके बाद यूपी में आया उसका कैपिटल लखनऊ, बिहार में उसका कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल में कैपिटल आया कोलकाता, और लास्ट है दिसपुर जो कि असम का कैपिटल है. तो इस तरह से आपने शो करना है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास. Thank you so much. Have a nice day. Bye.